Hello everyone, I'm Monica Dhingra. Welcome everyone in this English learning channel. Today I'm going to introduce you with verb. As we all know that it's a very important topic. Why verb is a very important topic? Because our all tenses are depend on this verb. To speak a correct sentence, to know a correct sentence, we should know about a verb. So let's start the verb. We should know what is a verb. Verb is action word. That is a action. That action you do, that is called a verb. So we will understand how many types of verbs. First one is helping verb. Second one linking verb. Third one is main verbs. Main verbs is also called the action verbs. It is called action verbs and action words also. All the action words are called verbs. So first one is helping verb, second one linking verb, third one main verbs. And now what is the structure of a sentence? How to frame a correct sentence? To frame a correct sentence, we should know the structure of the sentence. See, first one is subject and then verb and then object. To make a correct sentence, first of all we have to write subject. After subject we will put verb and after that we will write a object. See, what is the subject now? What is subject? Subject means a doer of action. या whom we are talking. What do you mean by the doer of action? क्या होता है doer of action? Doer means करने वाला. Doer means करने वाला. Of action. The person who does the action. जो person आपका action करता है, that is called a subject. Doer of action means action को करने वाला. And whom we are talking, because there are the some sentences in which there is no doer of action. कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें कोई एक्शन को करने वाला नहीं होता. तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई इन दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो इन दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी शुड सी देयर कि whom we are talking, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. Okay, that will be our subject. I will give you examples also. Now see second is verb. What is a verb? Verb means action words. All the action that you do, that is called a verb. आप जो भी action करते हैं, whatever action you do, suppose dance है, eat है, write है, anything, sing है, तो whatever action you do, that is called your verb. Third देखिए object. What is object now? Object means person or thing that receives the action of the verb. अब जो उस verb के action को receive कर रहा है, maybe he will be a person or anything, that will be our object. ठीक है? The most important thing is our subject and our verb, because according to our subject we put our verb. This is the structure of a sentence. First of all, we should know कि how we will write a sentence. First of all, subject, after subject verb, and after verb we will write a object. Now see the example of the sentence. See the first sentence, she bought a car. Now in this sentence, what is the subject? In this sentence, she is the subject, because in this sentence, who is the doer of action? Who is doing the action? Action को कौन कर रहा है? Now she. We don't know the name, तो यहाँ पे क्या होगा? She, because she is doing the action. She bought a car. Who bought a car? कार किसने खरीदी? She. तो she will be our subject. ये एक्शन को करने वाला है. जो bought एक्शन है हमारा, उसे किसने किया है? She. Now what is the verb here? Bought. क्योंकि क्या एक्शन हुआ है, क्या काम हुआ है यहाँ पे? एक्शन हुआ है bought means खरीदना. ओके, तो इट विल बी आवर वर्ब. नाउ अ कार, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्या खरीदा है, क्या bought किया है? वर्ब से लिंक कीजिए इसको. क्या परचेज किया है, क्या bought किया है? अ कार. तो इट विल बी योर ऑब्जेक्ट. शी इज योर डोर ऑफ एक्शन और वर्ब इज bought is your action word, that is verb. And who is receiving? What you are receiving? क्या receive किया है, क्या bought किया है? कार को. So it will be your object. This is the structure of a sentence. Subject,
verb and after verb we use object. If we are using only subject and verb, that will be a sentence. जिसमें जैसे कि she dances, नेहा sings, तो ये भी आपका sentence है. It is given subject and verb. Now see next. She helped the poor man. Now what is the subject? Help किसने की है? Who is the doer of action? She. We can write any name also. We can write Neha, we can write Ravi, any name. It can be singular or it can be plural. ठीक है? We can write the two names also here, Neha and Ravi. Help the poor man. तो in that case, Neha and Ravi will be our subject. और यहाँ क्या हो जाएगा? She will be our subject because she आपका doer of action है, काम को करने वाला है. Help क्या action किया? What action she does? She ने क्या action किया है? Help की है, तो help will be your verb. And तब किसकी help की है? वो जो verb है, इसको किसने receive किया है? Poor man. Help. ठीक है? तो the poor man. Clear? तो किसकी help की? Poor man की. It will be our object. She will be subject. Help आपका action है. It will be your verb. And the poor man will be our object. Clear? अब suppose I am asking, the train is coming. In this sentence, what is the subject? The train is coming. But in this sentence, no subject is given according to you. कोई doer of action नहीं है means. इसमें कोई doer of action नहीं है, but subject is given. Because in this sentence, we are talking about the train. The train is coming. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेन के बारे में. तो ट्रेन आपका क्या होगा? It will be your subject. The train is coming. तो हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं. Whom we are talking? ट्रेन. तो ट्रेन will be our subject. बट इसमें कोई एक्शन नहीं है. ट्रेन कोई एक्शन नहीं कर रही है, कोई एक्शन को करने वाला नहीं है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेन. तो ट्रेन विल बी आर सब्जेक्ट. दैट इज whom we are talking. Clear? अब now see helping verbs. What is helping verbs? Now we know the structure of a sentence. Now there are three types of verb that I told you. Number 1, helping verb. Number 2, linking verb. And number 3, main verb. Main verb is also called the action verb. Now what is a helping verb? क्या होते हैं helping verb? Helping verbs are those help verbs who help the main verb. देखिए इसके नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है. It is clear with its name, helping verb. It means ये जो हेल्प करती है, ये वर्ब क्या करती है? हेल्प करने का काम करती है. और किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? It always helps the main verb. I have written here, it helps the main verb. जो मेन वर्ब की हेल्प करे, that is called the helping verbs. That's why its name is helping verbs. वर्ब की हेल्प करना. See example देखिए कि what is the helping verb? How will you identify which is main verb and which is the helping verb? See, is was were ये आपके प्रेजेंट फॉर्म में है एंड was were क्या होता है? पास्ट फॉर्म में. ऐसे ही हैज और हैव ये प्रेजेंट में है, हैड आपका पास्ट में है. कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, do, does, did. और बी की फॉर्म्स होती हैं बी, बी और बी. ऑल दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. इसमें जो आपके यहां से स्टार्ट होंगे कैन, कुड से कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं जिनको हम इंग्लिश में मोडाल्स भी कहते हैं. ये 13 होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो. और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स का भी पार्ट होती है. क्लियर? हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं एंड वी कॉल दैट ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो. ठीक है? तो ये जो आपकी इज एम आर है, was were है, has have had है, all these are the helping verbs. इसके अलावा can, could, may, might, will, would, shall, should, must, तो ये सब हमारी helping verbs होती हैं. All these are called the helping verbs. ऐसे ही do, does, did,
फॉर्म्स होती है, बी, बी और बी. क्लियर? ऑल दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. दे ऑलवेज हेल्प द मेन वर्ब. Now see the examples. It will be clear to you with examples. See the first example. Sneha was writing a letter to her mother. Sneha was writing a letter to her mother. Now what is a helping verb here? Helping verb वो होगी जो main verb की help करेगी. It means with helping verbs main verb should be there. If there is a no main verb, तो it will not be called a helping verb. जैसे आप बोलते हैं ना she is happy, यहाँ इस आपका helping verb नहीं होगा because no main verb is given. तो helping verb means main verb should be there because it always help the main verb. See, now was writing. इसमें main action क्या हो रहा है? What action Sneha is doing? Sneha was writing. तो एक्शन जो हमारा हो रहा है, जो मेन वर्ब है, दैट इज राइटिंग. बट इस राइटिंग की, इस मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है? वॉज. कौन कर रहा है? वॉज. इससे आपको पता चलता है इट इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये पास्ट टेंस है. हमने हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई किया और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है. तो यहाँ वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब. इफ यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब, तो यू विल सर्कल या यू विल अंडरलाइन ओनली वॉज, क्योंकि राइटिंग हमारा क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब. इज राइट. स्नेहा वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर. स्नेहा आपका सब्जेक्ट है. डूअर ऑफ एक्शन कौन है? स्नेहा. वॉज राइटिंग आपका पूरा वर्ब हो गया और जो बाद का पार्ट है अ लेटर टू हर मदर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. इसमें ड्यूल ऑब्जेक्ट मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स है. अ लेटर भी आपका ऑब्जेक्ट है और टू हर मदर भी आपका, हर मदर भी आपका ऑब्जेक्ट है. क्लियर? नाउ सी मोर एग्जांपल्स. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सी, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड वर हेल्पिंग वर्ब बिकॉज प्लेइंग इज द मेन वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है? वर. तो जो मेन वर्ब की हेल्प करे, द वर्ब दैट विल हेल्प्स द मेन वर्ब, दैट विल कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो आपकी इज एम आर है, वॉज वर, हैज हैव हैड, प्लस में इनके बाद जो मेन वर्ब आती है, तो वो उससे पहले जो मेन वर्ब से पहले जो आपने इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड जो आपने यूज किया है, दैट विल बी योर हेल्पिंग वर्ब. इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ सी नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब you know, you understood. Now see linking verbs. What do you mean by the linking verbs? See, linking verbs क्या होती है? And it is clear with its name. Link करना, verb को link करना. किससे? Subject से. It plays the role of main verb. Where linking verb is given in the sentence, in that sentence there will be no main verb. वहाँ कोई main verb नहीं होती. बिकॉज जो लिंकिंग वर्ब होती है ये ही मेन वर्ब का रोल प्ले करती है. इट लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस को लिंक कर, सेंटेंस के सब्जेक्ट को वर्ब, लिंकिंग वर्ब लिंक करती है. ठीक है? किससे लिंक करती है? ये सब्जेक्ट से. इट डज नॉट डिस्क्राइब एनी एक्शन. बेटा इन विच सेंटेंस वी विल यूज द लिंकिंग वर्ब. इन दैट सेंटेंस इट इज क्लियर देयर विल बी नो मेन वर्ब. वहाँ कोई मेन वर्ब नहीं होती बिकॉज अ लिंकिंग वर्ब जो है इट प्लेज द रोल ऑफ मेन वर्ब. ये ही मेन वर्ब का रोल प्ले करती है लिंकिंग वर्ब. ठीक है? ये लिंक्स करती है किसको? सेंटेंस के सब्जेक्ट को विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट को विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इट लिंक्स. ये लिंक का काम मीन्स जोड़ने का काम करती है. इन वेयर लिंकिंग वर्ब इज गिवन देयर विल बी नो मेन वर्ब. Now see the examples of the linking verb. देखिए some verbs are same, that is linking verb and that is helping verb. But दोनों का ही जो रोल है, दोनों का जो एक्ट है, that will be different. Helping verb अलग रोल प्ले कर रही है और linking verb अलग रोल प्ले कर रही है. Words are same, जो words है वो सेम है helping verb के भी और linking verb के, but दोनों का जो रोल है, the act है, that is different. How it is different? See here. लिंकिंग वर्ब्स होती है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज,
हैव, हैड। ऐसे ही बीन की फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। ये हम पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। जैसे द वर्क हैज बीन डन। क्लियर? तो उसमें बट इसमें डन जो है मेन वर्ब गिवन है, उसमें मेन वर्ब नहीं होती है, हेल्प जिसमें लिंकिंग वर्ब गिवन होती है। ऐसे ही होती है बीइंग। बीइंग भी हमारा लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले करता है, खाली बीइंग वर्ड नहीं होगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग। क्योंकि बीइंग हम ऐड करते हैं हैज, हैव और हैड के साथ। बीइंग किसके साथ ऐड करते हैं? हैज, हैव और हैड। और बीइंग वी विल ऐड विद इज, एम, आर, वाज, वर। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग। ये पैसिव फॉर्म्स में भी होती है हमारी। तो दीज आर द लिंकिंग वर्ब्स। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? आई विल टेल यू थ्रू एग्जांपल्स। नाउ सी, except of these there are the some other linking verbs। कुछ और भी linking verbs होती हैं, because जो linking verbs है it plays the role of the main verb। ये ही main verb का रोल प्ले करती है। सी, बट इसमें कोई एक्शन नहीं होता। सी, लुक, लुक भी आपकी क्या है? लिंकिंग वर्ब। अपीयर, फील, सीम, टेस्ट, स्टे, ग्रो, रिमेन, keep, smell and sound. All these are the linking verb. Except of this is, am, are, was, were, has, have, had। इनके अलावा जो आपकी look, appear, feel, see, taste, stay, grow, remain, keep, smell, sound, all these are the linking verbs। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं it sounds good, इसमें कोई एक्शन नहीं है, मतलब अच्छा लग रहा है, it sounds good, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैंने आपको बोला शी लुक्स हैप्पी, देयर इज नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं है। तो लुक क्या होगा? लुक इज योर लिंकिंग वर्ब। लुक विल बी लिंकिंग वर्ब। नाउ आई विल गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज लिंकिंग वर्ब्स। नाउ आई विल मेक इट क्लियर थ्रू एग्जांपल्स। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ द लिंकिंग वर्ब। सी फर्स्ट एग्जांपल, she looks tired। in first example it is given she looks tired। now देखिए, in this sentence there is no action। she जो है she is not doing any action, वो कोई एक्शन नहीं कर रही है, बट वो टायर्ड दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? टायर्ड। तो यहाँ पे आपका looks क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। it will be your linking verb because she looks tired। क्या she कोई एक्शन कर रही है? no, she is not doing any action। वो सिर्फ आपको टायर्ड, थकी हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होगा? लुक्स विल बी योर लिंकिंग वर्ब बिकॉज देयर इज नो एक्शन वर्ड, देयर इज नो मेन वर्ब, इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ सी सेकंड एग्जांपल, नंबर 2, ही फेल्ट हंग्री, उसे भूख लगी। ही फेल्ट, उसने क्या फील किया? क्या फील किया? फेल्ट इज अ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ फील। फील हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो इसने भूख लगना, ही इज नॉट डूइंग एनी एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो इसमें फेल्ट क्या हो जाएगा आपका? लिंकिंग वर्ब। ही फेल्ट हंग्री, तो फेल्ट विल बी आर लिंकिंग वर्ब, उसे भूख लगी। तो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एक्शन, नो एक्शन इज गोइंग ऑन हियर, देयर इज ओनली लिंकिंग वर्ब। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर बिकॉज हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज कम विद द मेन वर्ब। अब मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब्स में होती ही नहीं है, तो इट विल प्ले द रोल ऑफ द मेन वर्ब। यहाँ लिंकिंग वर्ब्स ही मेन वर्ब का रोल प्ले करती है। नाउ सी नंबर 3, इट सीम्स डिफिकल्ट। हम कहते हैं डिफिकल्ट, ये सम तो डिफिकल्ट लग रहा है। इट सीम्स डिफिकल्ट, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, या कुछ भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीम्स। सीम्स आपका लिंकिंग वर्ब, कोई एक्शन नहीं है, देयर इज नो एक्शन, तो सीम्स विल बी लिंकिंग। नाउ सी नंबर 4, इट टेस्ट बिटर। इट टेस्ट बिटर, इसका टेस्ट कैसे है? बिटर मींस कड़वा। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपका एक्शन नहीं है, आप किसी का टेस्ट बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो इट है, इट हमारा सब्जेक्ट है, इट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो दैट्स व्हाई टेस्ट क्या होगा?
linking verb. See number 5 sentence. The rose smells sweet. The rose smells sweet. रोज कैसी स्मेल देता है? स्वीट. तो यहाँ वो रोज की स्मेल भी स्वीट है. रोज कोई एक्शन वर्क नहीं कर रहा. रोज इज नॉट डूइंग एनी एक्शन. रोज तो कोई एक्शन कर ही नहीं सकता. इट इज अ फ्लावर. तो इट विल बी आर लिंकिंग वर्ब. यहाँ पे स्मेल जो है आपका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यही आपका यहाँ पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. नाउ सी नंबर 6 सेंटेंस. She always remains happy. She always remains happy. इसमें क्या है? जो she है वो हमेशा हैप्पी रहती है. She is not doing any action. हैप्पी आपका एडजेक्टिव है. हैप्पी इज योर एडजेक्टिव. वो हमेशा हैप्पी रहती है. इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो remains क्या हो जाएगा आपका? लिंकिंग वर्ब. नाउ सी नंबर 7 सेंटेंस. It keeps burning. It keeps burning. ये burning मीन्स जलता रहा. ये जलता रहा, चाहे वो फायर थी, वट एवर इज देयर, इट कीप्स बर्निंग. तो यहाँ पे वो काम होता रहा कंटिन्यूसली. तो कीप्स क्या है आपका? एक्शन वर्ब. कीप्स ये कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज हुआ है. इट्स योर लिंकिंग वर्ब. नो एक्शन इज गोइंग ऑन हियर. यहाँ पे इट कोई एक्शन नहीं कर रहा. चाहे वो कैंडल है, कोई भी चीज है, वो जलती रही. तो इसमें कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा. इट इज योर लिंकिंग वर्ब. नाउ सी नंबर 8 सेंटेंस. He grew up in the village. वो गांव में, विलेज में grew up मीन्स पला बड़ा. तो उसने कोई एक्शन नहीं किया. He grew up मीन्स उसका जो वो जो उसकी ब्रॉटअप है वो कहाँ पे हुई? विलेज के अंदर. तो he grew up in the village. जैसे grew का it grew dark, अंधेरा हो गया. इसमें किसी ने कोई एक्शन नहीं किया. It grew dark. तो grew पर वहां पे क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब आपका. See number 9 sentence. They were late today. They were late today. अब इसमें देखिए they were, वो आज लेट थे. यहाँ कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है. ठीक है. लेट आपका एडवर्ब होता है. कोई एक्शन वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया. यहाँ जो वर्ब है ये ही लिंकिंग वर्ब, ये ही मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है. वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं. यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी अ हेल्पिंग वर्ब. कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी मेन वर्ब का होना जरूरी है. It can be helping verb when there will be a main verb. अब there is a no main verb, तो verb आपका क्या होगा? It will be your linking verb. ठीक है. जैसे आप बोलते she is happy today, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, वो आज खुश है. ठीक है. she is late today, she is happy today. ठीक है. Now see number 10. He has a lot of money. उसके पास a lot of money, बहुत सारी मनी है. He has, he contains, उसके पास है मीन्स कोई चीज आप पोजेस करते हो. नॉट कंटेन, पोजेस. पोजेस मीन्स रखना. ही हैज, तो हैज इज अ लिंकिंग वर्ब. हैज इज योर लिंकिंग वर्ब बिकॉज देयर इज नो एक्शन. कोई एक्शन नहीं है उसके पास. ऑलराइट, क्लियर. नाउ सी नंबर 11. आई एम बीइंग लेजी. आई एम बीइंग लेजी. मैं लेजी होता जा रहा हूं. इसमें आप कोई एक्शन नहीं कर रहे. लेजी हमारा एडजेक्टिव है. आई एम बीइंग लेजी, भाई मैं डे बाय डे लेजी हो रहा हूँ. नाउअडेज ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, चिल्ड्रन आ रहे हैं एट होम, तो दे आर गोइंग लेजी. दे आर गोइंग लेजी. तो यहाँ पे क्या हो गया? इसने कहा आई एम बीइंग लेजी, मैं लेजी हो रहा हूँ. ठीक है. बीइंग आपका यूज किया है, तो एम बीइंग आपका लिंकिंग वर्ब है. एम बीइंग क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब. नाउ सी नंबर 11 सेंटेंस. नंबर 12. In this sentence, she became suspicious when he saw the safe was open. देखिए, he became suspicious. Suspicious का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, मतलब संदेह होना, किसी के ऊपर डाउट हो जाना, शक होना किसी के ऊपर. He became suspicious. अब वो suspicious बन गया when he saw the safe was open. जब उसने देखा कि सेफ ओपन है. सेफ का मतलब जो तिजोरी होती है, तो वो अब सबकी नजर में आ गया. वो शक के दायरे में आ गया. सस्पिशियस बन गया. उसने कोई एक्शन नहीं किया, तो यहाँ बिकेम आपका क्या हो जाएगा? ही बिकेम सस्पिशियस. वो सस्पिशियस हो गया. नाउ क्लियर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिंकिंग वर्ब. आई टोल्ड यू हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर व्हेन मेन वर्ब इज गिवन, बट व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, सॉरी, जब व्हेन लिंकिंग वर्ब्स आर देयर, तो देयर विल बी नो मेन वर्ब बिकॉज लिंकिंग वर्ब plays the role of the main verb. I hope you understood. Thank you.